indicators, right? So in economic indicators, in economics as well as in law, you will find this important aspect of economic indicators. That means in order to analyze the economy, means ultimately we need to understand for doing any type of business the economic environment, right? That is the surrounding where we are concerned with. So the economic indicators will give us a few indication about the moves of the economy. That means how our economic movements will take place, and accordingly definitely the economic indicators will determine the flow of income. It will determine what policies government is going to take. See, actually every aspects of business, investments, production, consumption, it is related with our economy. Ultimately means as we say that the means you must have heard about 2009 recession. Once the recession was supposed to hit Indian economy, before that the Indian stock market crashed. So stock market means once the stock market crashed, after that the recession hit Indian economy, though it was not to a very large extent as it has hit the other parts of the world. So we can understand that how important are these indicators which will determine the flow of overall economy, right? Ultimately, if we have to invest, what type of investment we will do, where to invest, whether our production will fetch proper profitability or not, what is going to be the cost of factors of production. See, so many factors in managerial decision making, right? As a manager you will have to take different types of decisions, right? Anyone has anything to say here? Do you want to say something? Would you like to say something here? No, ma'am. Okay, no issue. Then I'm muting you. Okay. So as I was discussing that in managerial decision making, you will have to take different types of decisions. Like the first decision, as we understood, that is we are talking about economics, but the basic thing is that every time as a manager, we have to take, everyone has to take the first decision regarding the resources. As we all know that resources had got alternative uses. This resources has got alternative uses and we can put them into multiple type of productions. There are different production possibilities available, right? There are different types of production possibilities, options are available. So accordingly we will have to find the best options. The best options means the optimum utilization, that is optimum utilization of the resources, right? Considering the various economic factors, ultimately if I choose any investment option, it is all about, if I'm talking about resources, resources means not only land, labor, capital and organization. It actually relates to money. Without money, means we consider resources in simplified terms, it is money, because we can buy any resources with that of money only. But yes, that time we also need to consider the aggregate supply, so I'm not going into that factor. So the basic for the basic assumption, we take money as the most important factor. So resources, money, capital, whatever I'm talking about, ultimately it is the investment aspect. When we are talking about the decision making process, it's about all means alternative uses and where to invest, because investment will composed of all your factors of production, that is your land, labor, capital and organization, right? Now I forecasted, I thought that there will be more of consumer demand, there will be more of consumer demand and more of income generation opportunity. But suddenly a COVID came and entire economy went into this lockdown process. Then what does it indicated? Definitely the entire, because of this COVID-19, we understood that due to this lockdown, our entire economy went into a very slow motion or slow phase where there was no production, and no production or the distribution was proper means not proper, it totally stopped. So then definitely it hampered the overall economic development. It hampered the economic development because the flow of resources, means flow of resources and thereby the money flow all blocked, means everything was blocked. So we can understand
for a manager, it is so very important that he understand the economic factors. If we don't consider the economic factors, we will never be able to take any proper decisions, right? So now let us discuss the different types. Means now before I'm talking about, means before I discuss about the different types of economic indicator, let me give a small reference to economy. You all know what is economy. Still I'm just referring. Economy refers to what? Economy, as I discussed, that economy refers to a mechanism. It is actually a system. As a system where everything is interrelated, and systems of, I can say, economic relation taking place within a specific framework. Now this framework is actually what? When I'm referring economy as a set of economic, means economy refers to a system of economic relation taking place within a specific framework. Now what could be the framework? It's normally the framework, means economic activity as resources. When we are talking about economic relation, it means there is a exchange of resources. Since there are exchange of resources, so we define it as economic relation. हाँ ऋतु पढ़ना, हाँ ज्वाइन करो ना, मैंने तुमको कॉल किया था फॉर क्लास, और क्लास तो चल रही है, चलेगा अभी. You do one thing, you means if you are busy, go for the meeting, attend this recording. ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी तुमको, चलो. So we are talking about the exchange of resources. Fine. So exchange, when we are talking about economic relation, it simply means economic क्यों है relation. Social relation हो सकता है, friend हो सकते हैं, any type, family relation. But when we are specifically specifying the term economic relations, it specifically means that there is some exchange of resources taken place. जैसे production हो रही है, production हो रहा है, consumption हो रहा है, या मैं production के बाद distribution ले रही हूँ, distribution हो रहा है, देन डेफिनेटली उसके बाद ही कंजम्पशन पॉसिबल है. सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये जितने भी प्रोसेस है, इन सब में रिसोर्सेज का एक एक्सचेंज हो रहा है, राइट? लाइक प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस थ्रू different intermediaries, agents, factors, so many people involved, and means thus the output produced from the production will be distributed, and then the consumption will ultimately take place. Consumption means it will go to the ultimate consumers, right? So consumers we are talking about. So more the consumption, more is the amount of investment coming into the economy, or more the amount of money flow is coming into the economy. देखो जितना ज्यादा consumption होगा, उतनी ज्यादा तो पैसे इकोनॉमी में बूस्ट करेंगे. एक हमारी थॉट प्रोसेस ये है, और दूसरी थॉट प्रोसेस है जितना ज्यादा सेविंग्स होगा. सो इसी वजह से इन एन इकोनॉमी देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, दोनों चीज की जरूरत है, सो दैट द मनी फ्लो इज बैलेंस्ड प्रॉपरली. मनी फ्लो इकोनॉमी में बैलेंस रहेगा ना, तो ओवरऑल इकोनॉमिक जो साइकिल है, इट विल मूव प्रॉपरली. सो दिस इज वैलिड फॉर एनी इकोनॉमी. द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी विल डिटरमाइन द कंजम्पशन लेवल एंड हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो नॉर्मली हमारे जो एंटायर इकोनॉमिक ये जो फ्लो है, इकोनॉमिक फ्लो से मतलब इकोनॉमिक फ्लो अगर बैलेंस रहेगा, उससे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल कंजम्पशन लेवल, इकोनॉमिक जो हमारा सेविंग्स है वो ठीक रहेगा, और उससे सारी चीजों से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हो. कंजम्पशन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, एंड देयर बाय अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in the country is maintained. Fine. So इस वजह से it is very important that we understand the economic move. तो ultimately हम जब economic cycle को study करते हैं, it refers to the how different elements. Kostavi, it is there in your syllabus. I think you forgot the law syllabus. Kindly refer to the law syllabus. Legal and regulatory environment, it is there. Okay, so employment, standard of living, and then actually moving to economic indicators. If it would not have been in your syllabus, I would not have given this class to you all. Okay, chalo.
the flow of income. Now take this. See, before considering the entire thing, means entire what to say, the entire economic forces, or moving on to the economic indicators, first let us have a brief idea about the flow of income into the economy. Means how does this economic flow move into the economy? See, there are two sectors, two sections in an economy. One is the household sector. One is the household sector. So household sector means we all comes under this household sector. We all are means a household, right? So households, हमारे सबके घर है, तो we all are households. So people, resources, whatever we have, it is coming from the household sector, right? And the another sector is the firms. So household sector is considered to have resources who will supply these resources to the firms, right? Now, there are different types of, what to say, there are different types of flow. So first flow, let us consider the first flow. So I'm considering the first flow. See, first flow here is factor services. That means households will provide all the factors of production. Means if a firm, suppose Kostami wants to start a firm, a business, then what does she want? What does she need for an organization? She will need land, labor, capital and organization. Right. So this land, labor, capital and organization are all the factors of production. How will she get all this thing? She will get all this thing from the household itself. Household will supply all this factor of production, and so we say it is factor services. So here the household is providing factor services to the firms. So definitely the firm need to pay to the household for it. Nothing is free. Firm को तो कुछ भी free नहीं मिलेगा. So the firm need to pay. So now firm is paying to the household. What is the firm paying? The factor income. What is the factor income? That is rent, wages, interest and profit. Rent, wages, interest, profit. So this is going to be the factor income. This is one flow. ये एक flow है. इसके बाद अब देखो यहाँ पे सेकेंड फ्लो में देखो, ये जो फैक्टर इनकम आया, हाउस होल्ड के पास जो पैसे आए फर्म से, वो उसको खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर देखो वो सारे खर्च कर दिया. खर्च किया मैंने, खर्च कैसे कर रहा है? बिकॉज जो फर्म ने प्रोडक्शन किया, वट एवर द फर्म्स प्रोड्यूस, इट नीड्स टू सेल दोज गुड्स एंड सर्विसेज. So the firm will sell those goods and services to whom? It will simply sell those goods and services to the household. देखो ये household के पास ही जा रहा है ये products. ठीक है, डेफिनेटली उसके बाद ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है? ये सारे एक्सपेंडिचर कर रहा है, सारे पैसे खर्च कर रहा है फर्म के ऊपर. दिस इज वन केस व्हेन द हाउस होल्ड इज इन्वेस्टिंग ऑल द मनी. मींस दिस इज एन अजम्पशन इकोनॉमी का. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? हाउस होल्ड ने सारे पैसे खर्च नहीं किए. जैसे हाउस होल्ड ने सपोज 50,000 रुपए कमाए और 30,000 रुपए खर्च किए, 30,000 रुपए एक्सपेंडिचर हो गया और 20,000 सेविंग हो गई. ठीक है, अभी जो 20,000 सेविंग है, सेविंग का दो इम्पैक्ट होता है. एक होता है सेविंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी, सेविंग कैन बी रीयूज्ड इनटू द इकोनॉमी जब वो डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स के थ्रू चला जाता है. जैसे यहाँ पे बैंक्स है या अदर फाइनेंशियल सेक्टर है, बीच में आ गया. ठीक है, तो सेविंग से एक बूस्ट करेगा इकोनॉमी में, फ्लो को इंक्रीज करेगा. ऑन दी अदर हैंड सेविंग से लीकेज भी हो सकता है. अगर उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उसका कोई टैक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, आउट ऑफ टैक्स, आउट ऑफ कवरेज वो लीकेज हो जाता है. तो वो फाइनेंशियल सेक्टर या जो इकोनॉमी में जो मूव कर रहा है पैसा, वहां सर्कुलेशन में नहीं दिखा रहा है. सो दिस इज द फ्लो. ये जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, जो पैसे की सर्कुलेशन हो रही है. अब देखो गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू कंट्रोल दिस कि कितने पैसे इकोनॉमी में किस तरीके से फ्लो हो रहा है. ज्यादा पैसे फ्लो होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, कम होगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा. बोथ चांसेस आर देयर. तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमी का एक पैटर्न है काम को करने का. ठीक है, नाउ मूविंग टू द एग्जैक्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. सो द फर्स्ट वन इज द नेशनल इनकम.
नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? हमारे इकोनॉमी के जो इंडिसेस हैं वो सारी चीजें बेस करती हैं, सबसे पहली जो आती है वो नेशनल इनकम के ऊपर। नेशनल इनकम का मतलब है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम, मतलब हमारी कंट्री के, नेशन का क्या इनकम है, उसको ही हम नेशनल इनकम बोलेंगे। National income may be defined as the factor income earned by the residents of the country, that is the aggregate of labor income and capital income. तो हम लोग बोल सकते हैं it is the total of the income, मैं total जितना भी income है of the nation। अब नेशन में कौन पैसे कौन कमा रहा है, जो मैं नेशन की बात कर रही हूँ, इनकम ऑफ द नेशन मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन। इनकम ऑफ द नेशन मीन्स इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन। एक्चुअली ये तो इनकम जो है रेसिडेंट्स कमा रहे हैं ना, इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन, ठीक है। अब रेसिडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं? अग्रीगेट ऑफ लेबर इनकम एंड कैपिटल इनकम, हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं, अग्रीगेट ऑफ लेबर इनकम एंड कैपिटल इनकम। मतलब लेबर क्या अर्न कर रहे हैं, कैपिटल जो है वो कैसा इंटरेस्ट अर्न कर रही है, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। Now, labor income मतलब wages हुआ, salaries हुआ, other benefits paid to workers for providing labor services. Other benefits includes bonus paid to industrial workers and subsidized canteen free, है ना, तो ये सब। कैपिटल इनकम मतलब क्या होता है? कैपिटल इनकम सिंपल सा मतलब है प्रॉफिट्स, रेंटल पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। कैपिटल इनकम, व्हेन वी यूज द टर्म कैपिटल का मतलब ही है सम अमाउंट दैट हैज बीन इन्वेस्टेड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। मैंने कल या परसों ही बताया था आप लोगों को कि एक होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हम कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रहे हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा दैट विल जेनरेट मी कैपिटल इनकम, ठीक है। Now profits are earned by entrepreneurs, बहुत सारे entrepreneurs है वो profits earn करते हैं, which includes both large and small firms, बहुत सारे होते हैं। Now national income जब हम समझते हैं, there are different aspects to which we can study this concept। जैसे first concept है GNP, gross national product, ठीक है। ये जो gross national product है, gross national product को हम define कैसे करेंगे? Sum of all final, I hope my screen is visible and everyone is understanding the same. कोई प्रॉब्लम है कहीं पे आप लोग को तो पूछिए। हाँ शांतनु बोलो। हाँ 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 शायद कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कौस्तवी हिया, कौस्तवी did you get the what? Yeah, till now it's clear. Till now it's clear. ओ अब क्या हो, कौन है? हेलो, अच्छा, इफ यू डोंट माइंड आप थोड़ी देर बाद आपसे बात करूं, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, मैं फ्री होके फोन करती हूँ, ठीक है? ओके चलो। GNP is the sum of all final goods and services produced by the people of the country during a specified period of time। देखो ये GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे जो बेसिक डिफरेंस है, नेशनल की जब हम बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, हेयर वी कंसिडर ओनली द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नो, ये तो क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द सम ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हम लोग एक क्वार्टरली रिव्यू ले लें या पीरियोडिक कुछ भी टाइम ले लें, ठीक है। तो GNP जो है यहाँ पर हम लोग वी टेक, फर्स्ट थिंग दैट वी टेक इज द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो हमारे कंट्री के रेसिडेंट हैं, वो इंडिया में हो या बाहर हो, वी विल नॉट कंसिडर द अदर रेसिडेंट्स। GNP में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है।
नाउ इन द डेफिनेशन द टर्म फाइनल, अब यहाँ पर हम लोग फाइनल वैल्यू ले रहे हैं. फाइनल मीन्स दैट ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज काउंटेड इन देयर final form, and intermediate value, that is the value of goods from one producer to another, is not considered separately, as this would lead to the problem of double counting. तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू ली जाती है, मतलब जो एकदम एंड वैल्यू, जिसके पास फाइनल, जैसे कंज्यूमर के पास एक प्रोडक्ट गया तो कंज्यूमर ने कितना पेमेंट किया, दैट विल बी टेकन. यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट टेकन. जैसे एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास, या एक जैसे होता है ना, तुमने एक रॉ मटेरियल मुझे दिया, उस रॉ मटेरियल को मैंने यूज किया और फिर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट आया, तो उसका उस वैल्यू को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू. उसको नहीं पकड़ेंगे, मैंने जो उस प्रोडक्ट के फाइनल वैल्यू जो बनाया ना, उसको हम पकड़ेंगे. सो यहाँ पे डबल काउंटिंग नहीं होता है. नॉर्मली जीडीपी में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है. डबल काउंटिंग मीन्स द काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स मोर देन वंस. The value of intermediate goods is included only once, that is in the final product. The stages of value addition may be explained. देखो वैल्यू एडिशन को कैसे हम लोग यूज करें वो दिखा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये चीज को समझना. जीएनपी मतलब सबसे पहले बात हो गई, जीएनपी में वी विल कंसिडर ओनली दी value of all the goods and services produced in a particular period of time by the residents of that country. तो जीएनपी, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट की बात की हूं मैं, तो यहाँ पर अगर इंडिया में कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, कुछ जापानीज लोग हैं, तो हम लोग उन लोग को कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल कंसिडर ओनली इंडियंस, इवन इफ द इंडियन इज रिसाइडिंग एट यूएसए. किसी की इंडियन नागरिकता है, वो यूएसए में है, उसकी इनकम को भी हम कंसिडर करेंगे. दैट वी डिफाइन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. कितना इनकम आ रहा है अब्रॉड से, कितना इनकम जा रहा है टू अब्रॉड, इसलिए हमारा कैलकुलेशन होता है जीएनपी कैलकुलेशन में. ठीक है. देखो अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से होता है. सपोज ये एग्जाम्पल, इज दिस क्लियर कौस्तवी? কোথায় আছে তোমার এক্সামের পেজ? ওটা ডিড ইউ আন্ডারস্টুড? ওই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স হইছে না, ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস বলে একটা পুরো টপিক আছে. ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস, ওটার মধ্যেই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ওইগুলো রয়েছে. হ্যাঁ, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दैट इज वैल्यू, मैंने किस तरीके से वैल्यू एडिशन होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ब्रेड. सपोज एक प्रोडक्शन प्रोसेस है ब्रेड का, तो वो कैसे मूव करेगा. देखो वैल्यू ऑफ व्हीट फ्रॉम फार्मर्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ये फर्स्ट स्टेज है ना, इसको मैं কি করে র‍্যাপ করা যায়, র‍্যাপ টেস্ট, সব কিছু ভুলে যাচ্ছি আমি. ওকে, नाउ वैल्यू ऑफ व्हीट फ्रॉम फार्मर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू एडेड बाय फार्मर. तो फर्स्ट वैल्यू एडिशन फार्मर ने कितना किया उसको हम ले रहे हैं, मे बी 0.60, अमाउंट है 0.60. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ठीक है. अब देखो सेकेंड, ये तो वैल्यू ऑफ द व्हीट फ्रॉम फार्मर्स. अब सेकेंड स्टेज में वैल्यू ऑफ मिलिंग व्हीट इनटू फ्लोर. एक प्रोसेस है ना ब्रेड बनने का, मिलिंग व्हीट इनटू फ्लोर. अब यहां पर देखो क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू एडेड बाय मिलर, वैल्यू एडेड बाय मिलर. अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 1.30. ठीक है. देखो यहाँ पर जितना जितना जिसने वैल्यू ऐड किया है उसके हिसाब से हम लोग ले रहे हैं. अब देखो जैसे ये दो स्टेजेस तो कॉमन है, ये तो आया. अब थर्ड स्टेज में देखो वैल्यू ऑफ बेकिंग ऑपरेशन, वैल्यू ऑफ बेकिंग ऑपरेशन. तो ये हो गया वैल्यू एडेड बाय बेकर, एडेड बाय बेकर हो गई तुम्हारी 1 रुपीज 80 पैसे.
देखो स्टेजेस किस किस तरीके से बढ़ रही हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट स्टेज में जो है अब हम जा रहे हैं, ये तो जो स्टेप है वो तो रहेगा, ये 3 स्टेप तो रहेगा ही। 4th स्टेप और एक ऐड हो गया, वैल्यू ऑफ स्टोरिंग एंड हैंडलिंग। वैल्यू ऑफ स्टोरिंग एंड हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एडेड बाय द रिटेलर, एडेड बाय द रिटेलर, वो अमाउंट है तुम्हारा 0.20, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेज जो है, फाइनल स्टेज, वैल्यू ऑफ स्टोरिंग एंड हैंडलिंग बाय रिटेलर। यहाँ पे बेकिंग ऑपरेशन हुआ, वैल्यू ऑफ स्टोरिंग एंड हैंडलिंग बाय रिटेलर। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 रिटेलर वाला प्रोसेस जो है वो 2 आ गया है। एक्चुअली एक होलसेलर होगा, एक रिटेलर होगा। तो फाइनल वैल्यू अब यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं, दिस इज दी फाइनल वैल्यू ऑफ द ब्रेड। तो ये कितना हो गया, 3.90। इसका मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है 0.6 ऐसे प्लस करके टोटल अमाउंट आया 3.90। देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में जो इधर से उधर हुआ है वो अलग अलग करके नहीं करके हमने क्या किया, फाइनल वैल्यू को लिया। बिल्कुल देखो किस किस स्टेज में हमारा कैसा कैसा प्रोडक्शन हुआ है उसको हमने यहाँ फाइनल कैलकुलेशन में, फाइनल वैल्यू ऑफ द ब्रेड में लिया है। यहाँ पर जो डबल कैलकुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो बहुत जगह पर डबल कैलकुलेशन होता है, पर यहाँ पे देखो जीएनपी में कहीं पर भी हमारा डबल कैलकुलेशन बोल के कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो, जीएनपी कैलकुलेशन क्लियर है? नो मैम। জিএনপি ক্যালকুলেশনটা আবার একবার বলে দিচ্ছি। দেখো যখন একটা প্রোডাক্ট फार्मर থেকে, মানে फार्मर की दिलो तुम्हें, फार्मर ने तुमको आटा दिया या गेहूं दिया, ठीक है। गेहूं को फिर मिलर ने, जो मिलिंग करता मतलब क्या बोलता है उसको, मिल में पिसाई होता है ना, तो वो गेहूं को पीसा गया, उसके बाद वो बेकिंग में गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट स्टेजेस में जा रहा है, वो जो डिफरेंट स्टेजेस में एक सामान जो जा रहा है, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस प्रोडक्ट में। पहले क्या था, वो रॉ एक था गेहूं, तो पहले वैल्यू एडेड बाय फार्मर, फार्मर ने कितना दिया, फार्मर ने सिर्फ गेहूं दिया, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ इनकम कितना है, 0.60, 60% या 60 पैसे। क्या हुआ, बोल देते हैं, नानू बोले अंकल बुला रहे क्लास। जाओ कंप्यूटर स्टार्ट करो। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड बाय फार्मर में क्या हो रहा है, 1050 में पहले फार्मर ने जो गेहूं दिया, गेहूं की वर्थ क्या निकली, 60 पैसे, गेहूं फार्मर को 60 पैसे मिले। वैल्यू एडेड बाय मिलर, मिलर जो क्या बोलता है, जो वो कर रहा है गेहूं को पीस रहा है, उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 1 रुपया 30 पैसे का। वैल्यू एडेड बाय बेकर, अब बेकर ने उस वैल्यू जनरेशन प्रोसेस को कितना किया, 1 रुपया 80 पैसा। इस तरीके से देखो हर कोई का अपना अपना एक वैल्यू जनरेशन प्रोसेस है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फार्मर कितना वैल्यू जनरेशन कर रहा है, वैल्यू एडेड बाय मिलर, वैल्यू एडेड बाय बेकर, वैल्यू एडेड बाय रिटेलर, देन वी अल्टीमेटली रीच टू दी फाइनल वैल्यू। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि जब एक प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू निकलता है, जब हम सेलिंग, नॉर्मल सा बात समझो, जब हम एक सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कोई सामान का किस तरह निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग का जो डिफरेंट स्टेजेस में जो प्रोडक्शन है उसको हम ऐड करते हैं या नहीं करते हैं, ऐड करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से हम लोग उसको ऐड करते हुए गए हैं, समझ आया? तो फार्मर ने क्या वैल्यू एडेड किया, मिलर ने कितना ऐड किया, इस तरीके से हमारा वैल्यू एडिशन प्रोसेस पूरा चला है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जब जीएनपी कैलकुलेशन होता है वहां पे कोई डबल कैलकुलेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या डबल काउंटिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया?
मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जीडीपी स्टार्ट करने वाली हूँ और जीएनपी तक हुआ है, जीडीपी स्टार्ट करूँगी मैं आज। थोड़ा नहीं, लॉ तो तुम लोग का नहीं है, थोड़ा सा लॉ कराऊंगी। लॉ में क्या इशू है कौस्तवी, तुम निकाल के रखो, आई एम कमिंग इन 10 minutes।